Assalamu alaikum students. Today we are going towards that Hamilton's problem, and first of all I would like to revise some points from the previous lecture. First of all is the phase space. The first point is the phase space, and phase space is a space of 2n dimensions if you are having n generalized coordinates. If you are having n generalized coordinates, you are having n generalized momentas on the basis of those coordinates. So your phase space should be of 2n coordinates, and your phase space is dependent on q1, q2, q3 and so on, qn, p1, p2, p3 and so on, pn, where qi is the generalized coordinate and pi is the generalized momentum. Afterwards we have discussed Liouville's theorem. What was Liouville's theorem? It was that d rho by dt is 0 in the phase space, or in the phase space the density remains constant. The next thing was Hamiltonian. What was Hamiltonian? A Hamiltonian is a function which represents total energy of the system in the phase space. And afterwards we had discussed that this Hamiltonian had a special relationship with the Lagrangian, that is H is summation pi qi dot minus L, where L is the Lagrangian. L is that Lagrangian which we have discussed previously, that Lagrangian is T minus V, where T is the kinetic energy, V is the potential energy. And in this summation, pi's are generalized momentas, qi dots, those are generalized velocities, qi are generalized coordinates, and so was our Hamiltonian related to the Lagrangian. And afterwards we derived Hamilton's equations of motion. And what were these? That if H is the Hamiltonian, and if this H represents the total energy of the system, then partial H by partial qi, it is equals to minus pi dot, and partial H by partial pi equal to qi dot. And the third relationship was between the Hamiltonian partial L H by partial t and minus partial L by partial t. Partial H by partial t equal to minus partial L by partial t, where H, this Hamiltonian, is a function of generalized coordinates, generalized momentas and time. And what this L is Lagrangian, which is dependent on generalized coordinates, generalized velocities and time t. So these were the interrelationship. This was the interrelationship of Hamiltonian and Lagrangian, and these were the relationships of the Hamiltonian, partial derivatives of Hamiltonian with respect to coordinates, generalized coordinates, and with respect to generalized momentas, and change in momentas with respect to time, and change in coordinates with respect to time. These are the relationships. And these two equations, which are called Hamilton's equations of motion, these are famous for it. These describe all the dynamics of the system. What this H describes? It describes the total energy of the system. And this H is dependent on generalized coordinates and generalized momentas in time. And then we have described the relationship which was dependent on H and qi and pi. There were two relations, partial H by partial qi equal to minus pi dot, and partial H by partial pi equal to qi dot. There were two relationships, and these two relationships describe the whole dynamics of the system. Now we know what is Hamiltonian. Now we come to the construction of Hamiltonian. Here is the method. First thing is to construct a Hamiltonian. How can we construct a Hamiltonian if we are having a system? First of all,
you have to choose a set of generalized coordinates. For example, if you want Cartesian coordinates with respect to the system, or you want polar coordinates, plane polar coordinates respective for the respective system, or you want spherical polar coordinates, or you want Cartesian polar coordinates, or you want a 3-dimensional space, or you want 2-dimensional space. It depends on yourself and on the system, not on yourself but majorly on the system, which type of system it is. If it is a system like a simple pendulum with one bob, or a double pendulum, or a triple pendulum, we can very easily take r and theta to describe it. If we are having a simple particle moving in 1 dimension or 2 dimensions, we can take the real line or a plane, a Cartesian plane, to express its motion. And if I am having a compound pendulum, it can rotate in this 3 dimensions, so I have to take the spherical polar coordinates or cylindrical polar coordinates to express it, whatever is concerning to the problem, whatever are suitable to the problem. Or if I am having the motion of a particle in the space xyz, I can take the Cartesian coordinates in 3 dimensions. So the first thing is to choose a set of generalized coordinates qi's, and then we have to construct the Lagrangian with respect to these generalized coordinates. If you are having the generalized coordinates, then you can find out the generalized velocities, and then we can easily find out the kinetic energies, because kinetic energy T, it is equal to half mv square, and from the system we can access the potential vector V, and with the help of this T and V we can find a Lagrangian. Now the next thing, that because we are having L now, we can find the conjugate momentas with the help of this QI's, generalized coordinates, with the help of generalized velocities, and with the help of partial L by partial QI, because I know that Lagrange equation of motion is partial L by partial QI dot equal to PI. This is the Lagrange equation of motion. And with the help of this Lagrange equation of motion, I can find out conjugate momentas, PI's. And now when I got this QI dot and PI's, then I can construct my Hamiltonian. Why? Because my Hamiltonian is related to my Lagrangian with the help of this formula, summation I equal to 1 to n PI, which has been derived from Lagrange equation of motion, and QI dot, which have been derived with the help of generalized coordinates, minus L, and L we have constructed before. Now we have construct the Hamiltonian. How to construct a Hamiltonian? How to make a Hamiltonian function? The easy way. First, choose the appropriate set of generalized coordinates QI. Then, with the help of those generalized coordinates, we can find generalized velocities, on the basis of which we can find kinetic energy, and this kinetic energy along with the potential energy will give us the Lagrangian. And when I get the Lagrangian, I can find out the generalized momenta, that is partial L by partial QI dot, it is equals to PI. Afterwards, when I am having PI's, QI dots and L, I have the Hamiltonian as a combination of summation I equal to 1 to n PI QI dot minus L. And afterwards, when I construct the Hamiltonian with the help of this, I can find out the values of QI dot,
what are my qi dots, and with the help of these qi dots which I have obtained from the Hamiltonian function, you know that if my Hamiltonian it is dependent on qi's and pi's and t, then I can find the generalized velocities in terms of generalized coordinates and generalized momentas. So I can find out all those generalized velocities qi dot which are dependent on qi, pi and t, and with the help of qi dot we can eliminate all these qi dots, and with the help of these new values of qi dots, after we put these qi dots we can eliminate these values from the Hamiltonian, and thus our Hamiltonian, which was previously a function of pi qi dot and L was surely dependent on qi dot and t, so this Hamiltonian was previously a function of pi qi dot and t, and afterwards when I get the value of qi dot in terms of qi, pi and t, and after putting this into my Hamiltonian function I will get a Hamiltonian independent of qi dot. That is, my Hamiltonian will now dependent on qi's, pi's and t only. अब एक दफ़ा उर्दू में भी आपको बता दूं कि अगर किसी को इंग्लिश का करके नहीं समझ आ रही है तो फिर उर्दू में भी अब आप कहेंगे हमारी मिस जो है वो एकदम से इंग्लिश में चली जाती है और एकदम से उर्दू में चली जाती है। तो ये इसलिए है कि देखिए स्टार्टिंग के लेक्चर्स तो मैंने उर्दू में दिए और उर्दू में देने का मकसद ये था कि आपको अच्छी तरह से बेसिस की समझ आ जाए। उसके बाद फिर आपने देखा कि मेरे कुछ लेक्चर्स इंग्लिश में भी आए और प्योरली इंग्लिश में। जाहिर है आप MSc के स्टूडेंट्स हैं, आप इजीली इंग्लिश समझ सकते हैं। बेहतर है कि आप फिर मोड ऑफ स्टडी यूनिवर्सिटी लेवल पे यूजुअली इंग्लिश होता है, ठीक है ना, लेकिन ये कि अगर हम उर्दू में देते हैं तो मकसद सिर्फ समझाना होता है, असूलन इंग्लिश में ही होना चाहिए। लेकिन ये कि बीच में मैंने लेक्चर इंग्लिश में भी दिया और फिर उर्दू में भी दिया, तो ये है कि समझा तो हम किसी भी ज़ुबान में सकते हैं। असल चीज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मेरी टीचिंग का बेसिक मकसद यही है, हम लोग जो टीच करते हैं इसीलिए होता है कि आप लोगों के ज़हनों में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपके जहन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आप लोग देखो कि हम जिस किस्म के क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ये नहीं कि आपने बुक देखी, रटा लगाया और जी दे दिया। मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स देती हूँ या करवाती हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इशू हो आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जहन क्लियर नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो फिर तो वो आप बुक रीडर ही बन जाओगे ना कि जी ये बुक के ऊपर ऐसे था तो हमने भी ऐसे करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत बेहतर हो जाता है। बेसिक मकसद यही होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इंग्लिश भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं उर्दू भी यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन उर्दू में बताने लगी हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स QI चूज़ करने, वो हमने अपने से रिलेटेड चूज़ करने की। जी हमारा सिस्टम इस किस्म का है तो इसके लिए सुटेबल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फिर लेग्रांजियन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। लेग्रांजियन क्या होता है हमें पता है, ये T-V होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेग्रांजियन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो लेग्रांजियन का हमें पता है कि इट इज बेस्ड ऑन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड वेलोसिटीज एंड t। उसके बाद जी वहां से हम कॉन्जुगेट मोमेंटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पार्शियल L बाय पार्शियल QI डॉट जो है वो PI के बराबर होता है। कॉन्जुगेट मोमेंटा को हम इन टर्म्स ऑफ QI डॉट और पार्शियल L बाय पार्शियल QI डॉट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम वहाँ से हैमिल्टोनियन बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हैमिल्टोनियन और लेग्रांजियन के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, H इक्वल टू समेशन PI QI डॉट माइनस L है। अब यहाँ से हमारा जो हैमिल्टोनियन है उसमें जाहिर है QI भी इन्वॉल्व है, उसमें PI भी इन्वॉल्व है, T तो इन्वॉल्व है ही, उसके अलावा इसमें QI डॉट इन्वॉल्व है। तो बेहतर ये होगा कि हम QI डॉट की वैल्यूज निकाल लें। ये हम इन टर्म्स ऑफ PI निकाल सकते हैं और वही जो लेग्रांजियन इक्वेशन है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। पार्शियल L बाय पार्शियल QI डॉट इक्वल टू PI, वहाँ से आप QI डॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ PI निकाल लो। उसके बाद वो वैल्यूज पुट कर दो इस हैमिल्टोनियन में। हैमिल्टोनियन में से
आप क्यू आई डॉट्स की वैल्यू इस तरह एलिमिनेट कर दोगे और जो आपके पास हैमिल्टोनियन आएगा वो टोटली एक फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्यू आई, जनरलाइज मोमेंटा पी आई और टी का फंक्शन होगा। उसके बाद जी अगला है कुछ एप्लीकेशंस हैं रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन। अब ये पहली एप्लीकेशन है, ये तो मैंने ज़्यादा डिटेल में इस पे स्लाइड पे लिखी हुई है। अगली एप्लीकेशन जो हैं वो हम खुद करेंगे और मिलके करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, पहली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि कैसे निकालना है। उसके बाद मैं और आप मिलके ज़रा निकालेंगे कि अच्छा जी क्या बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल है जी, कंस्ट्रक्ट द हैमिल्टोनियन फॉर प्लेनर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल। एक आपने हैमिल्टोनियन बनाना है, प्लेनर मोशन ऑफ ए पार्टिकल के लिए बनाना है और उसमें सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है, यानी फोर्स पोटेंशियल कहीं सेंटर में है। इसका मतलब ये कि फोर्स पोटेंशियल जो है आपका पोटेंशियल जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। जितनी ये दरमियान में फोर्स, दरमियान में पोटेंशियल है, फोर्स जो है उस पोटेंशियल की वजह से है, फोर्स इर्द गिर्द लग रही है। इसका मतलब ये कि जो पोटेंशियल है ये डिपेंड कर रहा है आर पे, जितना दूर आर होगा उसके लिहाज से पोटेंशियल होगा। ऑल्सो फाइंड हैमिल्टन्स इक्वेशन, पहले तो हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करो, फिर वहां से उसकी हेल्प से हैमिल्टन्स इक्वेशन फाइंड आउट करो। अब ये सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है, यहां से आपको पता चल रहा है कि आपका वी जो है ये रेडियस डिपेंडेंट है, ठीक है। सेंटर में फोर्स का पोटेंशियल है, इर्द गिर्द सारा सिस्टम। अच्छा, अब एक पार्टिकल है, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है, एक पार्टिकल है प्लेन में मूव कर रहा है। अगर हम सिस्टम की ज्यादा पार्टिकल्स की बात करें वो और चीज है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है और पार्टिकल प्लेनर मोशन शो कर रहा है। अब आ जाते हैं जी, पार्टिकल जो प्लेनर मोशन शो कर रहा है तो उसके मोशन के लिए हम अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट्स कौन से यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स जो हम यूज कर सकते हैं, जाहिर है पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें ज्यादा सूट करेंगे क्योंकि हमारे पास सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम यूज करें, वी यूज पोलर कोऑर्डिनेट्स। to express motion of a particle, of the particle। ना का लफ्ज क्यों यूज करते हैं, ए क्यों नहीं कहा मैंने। ए पार्टिकल, एक पार्टिकल, द पार्टिकल स्पेसिफिक वो पार्टिकल जिसका आपकी एग्जांपल में बताया गया। इस पार्टिकल की मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे और ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हैं, दीज आर थीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब पार्टिकल क्योंकि प्लेन में मूव कर रहा है तो यूजुअली हमारे पास टी क्या होता है, वो जी प्लेन में तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं और यहाँ पे हम क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी देखें यहाँ पे आ गया। हमें पता है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं r थीटा और हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये थे। और आपको पता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द फ्री कोऑर्डिनेट्स। फ्री कोऑर्डिनेट्स आपके पार्टिकल के एक्स वाई हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं r और थीटा, and these r and theta they are dependent on x and y. These are all we have discussed before. अच्छा जी, अब x है तो x डॉट भी होगा। x डॉट किसके बराबर है, r डॉट cos थीटा माइनस r sin थीटा, थीटा डॉट, ये x डॉट है। y है तो y डॉट भी निकाल सकते हैं जी, r डॉट साइन थीटा प्लस r cos थीटा, ये जी x डॉट और y डॉट आ गए। अब ये x डॉट और y डॉट मैंने बोला क्यों निकाला, याद करें, इसलिए कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m v स्क्वायर है, विच इज हाफ
एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ। जब आप एक्स डॉट स्क्वायर लोगे तो आपके पास आएगा आर डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर डॉट कॉस थीटा साइन थीटा थीटा डॉट प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2r डॉट साइन थीटा कॉस थीटा थीटा डॉट, ये टर्म्स आ गई। इसमें से ये दूसरी टर्म और आखिरी टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। बाकी आप देखें तो t इक्वल टू हाफ r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर के बराबर है। ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों मिली? पोटेंशियल का हमें पता है कि पोटेंशियल हमारा रेडियस डिपेंडेंट है, r डिपेंडेंट है, रेडियल कोऑर्डिनेट हमारा r है, r डिपेंडेंट है। हमने ये दोनों क्यों फाइंड आउट किए? ताकि हम लेग्रांजियन निकाल सकें। पहली चीज़ क्या थी? कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन में याद करें, पहली चीज़ ये थी कि आप कोऑर्डिनेट्स निकालें, दूसरी चीज़ ये थी आप लेग्रांजियन फाइंड आउट कर लें। लेग्रांजियन हमारे पास हाफ r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी आर आ गया, ये आपका लेग्रांजियन है। अब इसके बाद क्या करना है याद करें। पहली चीज़ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, उसके बाद लेग्रांजियन फाइंड आउट करें, फिर क्या फाइंड आउट करना है? अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, कोऑर्डिनेट्स थे r थीटा। हमें हैमिल्टोनियन के लिए नेक्स्ट चीज चाहिए मोमेंटा, जनरलाइज्ड मोमेंटा। जनरलाइज्ड मोमेंटा कहाँ से आते हैं? हमारे पास इक्वेशन थी पार्शियल l बाय पार्शियल q i डॉट इक्वल टू पी आई, यहाँ से हमारे पास जनरलाइज्ड मोमेंटा आने, ठीक है जी। अब हमारे पास क्यू आई क्या है? r और थीटा है, तो हमारे पास आता है जी पार्शियल l बाय पार्शियल r डॉट इक्वल टू पी आर और पार्शियल l बाय पार्शियल थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा। ये दो हमारे पास जनरलाइज्ड मोमेंटा आ जाएंगे। एक तो जी r डॉट के हिसाब से पी आर और एक थीटा डॉट के हिसाब से पी थीटा हमारे पास आएगा। तो अब हम ये फाइंड आउट करते हैं जी पी आर जो है आपका वो पार्शियल l बाय पार्शियल r डॉट है और वो आपके पास आ जाएगा, ये t जो है इसमें m भी तो इन्वॉल्व होना है, मास ऑफ द पार्टिकल भी तो इन्वॉल्व है, मैंने लिखा ही नहीं, अब लिख लेते हैं। अच्छा हुआ ना, याद आ गया, टाइम पे याद आ जाता है। अच्छा जी, पी आर आपके पास r डॉट m आ गया और यहाँ से हम अगला स्टेप भी थोड़ा थोड़ा साथ कर लेते हैं कि हम लिख सकते हैं कि जी r डॉट जो है वो पी आर ओवर m है। इसी तरह जब आप p थीटा लोगे वो क्या है? वो है आपका पार्शियल l बाय पार्शियल थीटा डॉट, ठीक है जी। ये है पार्शियल l बाय पार्शियल थीटा डॉट और ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा जी m r स्क्वायर थीटा डॉट के बराबर और थीटा डॉट किसके बराबर आ जाएगा? p थीटा ओवर m r स्क्वायर के बराबर, ठीक है जी। यहाँ से हमने r डॉट और थीटा डॉट भी पहले ही निकालनी है, लेकिन ये कि अभी हमें इससे पहले हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद उसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। हैमिल्टोनियन किसके बराबर है? समेशन i जो 1 से लेके 2 तक है यहाँ पे, पी आई क्यू आई डॉट माइनस, याद करें क्या है माइनस एल क्यू आई डॉट और टी। जब इसको खोलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पी आर क्यू आर डॉट प्लस पी थीटा क्यू थीटा डॉट माइनस एल क्यू आई डॉट एंड टी। पी आर क्या है जी आपके पास? आर डॉट एम। क्यू आर डॉट, इनफैक्ट ये आर डॉट है, ठीक है। पी थीटा क्या आपके पास आ गया? पी थीटा आपके पास आ गया एम
आर स्क्वायर थीटा डॉट, और क्यू थीटा क्या है, जाहिर है थीटा ही है, तो थीटा डॉट माइनस एल आपका क्या है वो आप यहाँ पे पुट कर दो, m/2 आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और क्योंकि माइनस वी आर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वी आर। ये आपका हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट हो गया। हैमिल्टोनियन आपके पास क्या है, हैमिल्टोनियन आपका आ गया है जी एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस m/2 आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वी आर। अब ये देखें जी, ये आपका हैमिल्टोनियन आ गया, पी आर क्यू डॉट आर और पी थीटा क्यू डॉट थीटा, और जी इसी तरह एल क्यू आई डॉट टी। तो हैमिल्टोनियन यहाँ से आपका बन गया है पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल, और एल की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हैमिल्टोनियन इनफैक्ट आपका बना है, मैंने तो पी आर की भी वैल्यू पुट कर दी थी। वैसे ये कि अगर हम पुट भी कर देंगे दोबारा उसको पी आर में लाना पड़ेगा, वो कर दें वो गलत नहीं है, लेकिन ये कि दोबारा फिर उसको इन टर्म्स ऑफ पी आर लिखना पड़ेगा, तो चलो इस तरह कर लेते हैं, पहले ही नहीं पुट करते। पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल क्या था आपका m/2 आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी ऑफ आर। ठीक है जी, ये था। और हमें क्या पता है, हमने जो ऊपर से निकाला है, हमने ये निकाला है कि आर डॉट पी आर ओवर एम है, और थीटा डॉट जो है वो पी आर ओवर एम पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर है। यहाँ से एक दफ़ा फिर देख लें, बिल्कुल यही है। जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो पी आर एज इट इज आर डॉट की बजाय पी आर ओवर एम आ जाएगा, पी थीटा एज इट इज थीटा डॉट की बजाय पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस m/2 आर डॉट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे पी आर स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर r4 प्लस वी आर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि v तो फंक्शन ऑफ r है ना, इसमें तो वेलोसिटीज है नहीं। पहले हमने हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया कि ये r डॉट और थीटा डॉट की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। हमारे पास आ गया पी आर स्क्वायर ओवर एम प्लस पी थीटा स्क्वायर ओवर एम आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ओवर 2m माइनस पी थीटा स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी ऑफ आर, और ये हमारे पास आ गया पी आर स्क्वायर ओवर 2m प्लस पी थीटा स्क्वायर, यहाँ पे जी आर स्क्वायर भी आना, पी थीटा स्क्वायर ओवर 2m आर स्क्वायर माइनस वी आर। डेट्स योर रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन। अच्छा, अब जो मैंने पीछे कैलकुलेशन की है पिछली स्लाइड में, उसमें भी आप देखें तो इसको अगर आप समराइज करें तो आपके पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर का हाफ ओवर 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, तो यहाँ पे मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, टी माइनस वी जब मैंने पुट किया प्लस आएगा, तो सॉरी माइनस वी आर जब मैंने पुट किया प्लस आएगा, और यहाँ पे भी फिर जब मैं माइनस पुट करूंगी तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस साइन आएगा और इधर एंड पे भी प्लस साइन आएगा। ये मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गई हूँ इसको लिखते हुए पावर पॉइंट पे। अच्छा जी, अब आपके पास ये आ गया प्लस वी आर। अब यहाँ पे देखो आर डॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करो, थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, तो आपके पास वही हैमिल्टोनियन आ जाएगा जो हमने यहाँ पे हासिल किया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ एक्सेस, तो हैमिल्टन इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं।
अच्छा जी, हैमिल्टोनियन जो हमारा था वो किसके बराबर था, पी आर स्क्वायर ओवर 2m प्लस पी थीटा स्क्वायर ओवर 2m आर स्क्वायर प्लस वी आर, ये आपका हैमिल्टोनियन था। अब हम हैमिल्टन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। हैमिल्टन इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, एक तो हमने ये देखा कि पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई अगर हमने तो वो पी आई के बराबर होता है विद नेगेटिव साइन। पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई लें तो वो किसके बराबर था, क्यू आई के बराबर था। एक दफा फिर पीछे से देख लेते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, और पीछे जाएंगी और पीछे। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने देखी कि पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई माइनस पी आई डॉट है और पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई क्यू आई डॉट है। ये जो हमारा काम था ये वो था, और ये जो आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि पी आई आपके पास किसके बराबर है, माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई के, और क्यू आई आपके पास किसके बराबर है, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई के। अब आप आई की बजाय आर पुट करो तो सॉरी यहाँ पे पी डॉट आएगा और क्यू डॉट आएगा, पी डॉट आई और क्यू डॉट आई। पी डॉट आई आपके पास माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई के बराबर है, क्यू आई डॉट आपके पास पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई के बराबर है। जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो पी डॉट आर माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल आर होगा, आर डॉट पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आर होगा, पी डॉट थीटा माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल थीटा होगा, और थीटा डॉट पार्शियल एच बाय पार्शियल पी थीटा होगा। चलो जी अब वैल्यूज लेते हैं। पी डॉट आर आपका माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल आर के बराबर है, और पार्शियल एच बाय पार्शियल आर किसके बराबर है, पार्शियल वी बाय पार्शियल आर के बराबर। ये वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, पी डॉट आर इज माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल आर। उसके बाद जी पार्शियल एच बाय पार्शियल थीटा ले रहे हैं हम, जो कि 0 के बराबर है, और वो हम इस तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो पी डॉट थीटा इक्वल टू 0 निकल आया। अच्छा जी, अब हम पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आर ले रहे हैं जो हमें आर डॉट देंगे। पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आर लिया तो आपके पास 2 पी आर ओवर 2m आ गया, विच इज इक्वल्स टू पी आर ओवर m। तो ये आपके पास आर डॉट के बराबर आ गया, ये वाली। और इसी तरह पार्शियल एच बाय पार्शियल थीटा लेंगे, पी थीटा लेंगे तो वो थीटा डॉट के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू 2 पी थीटा ओवर 2m आर स्क्वायर। पी थीटा के अलावा बाकी सारी चीजें एज कांस्टेंट कंसिडर होंगी, विच इज इक्वल्स टू पी थीटा ओवर m आर स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल्स टू थीटा डॉट। तो यहाँ क्यू डॉट थीटा लिखने हैं, इससे बेहतर है कि यहाँ पे हम थीटा डॉट ही लिख दें। तो ये थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा ओवर m आर स्क्वायर आ गया। सो दीज आर द हैमिल्टोनियन इक्वेशन, एंड ऑन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिराइव्ड द हैमिल्टोनियन। अब आ जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। कंस्ट्रक्ट हैमिल्टोनियन एंड फाइंड हैमिल्टन इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ फोर्स फील्ड विद अ पोटेंशियल v in plane polar coordinates, in cylindrical coordinates and in spherical polar coordinates। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल v के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नहीं कहा गया कि जी ये सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि हमारा v जो है वो r और थीटा दोनों पे डिपेंडेंट है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा हैमिल्टोनियन पहले जैसे ही बनता है या हमारा हैमिल्टोनियन कोई डिफरेंट बनता है। सोल्यूशन पे आते हैं। अब हमें ये पता है कि x हमारा r cos थीटा है, y हमारा r sin थीटा है, और प्रीवियस एग्जांपल से हम देख चुके हैं कि t हमारा m ओवर 2 x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू m ओवर 2 r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर है। ये आपका t आ गया। v आपका अब जो है इट इज डिपेंडेंट और r and theta. So Lagrangian is t minus v, which is m over 2 r dot square plus r square theta dot square minus v r and theta। ठीक है जी। अब आगे हम आ जाते हैं Lagrange इक्वेशंस
वहां से हमने क्यू आई डॉट निकालने। क्यू आई डॉट इज पार्शल एल बाय पार्शल किसके बराबर थी, बल्कि पी आईज निकालने हैं। पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट इट इज इक्वल्स टू पी आई। जब ये देखेंगे तो पार्शल एल बाय पार्शल आर डॉट ये किसके बराबर होगा, एम आर के बराबर, जो कि पी आर के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि सॉरी एम आर डॉट, इसका मतलब है कि आर डॉट पी आर ओवर एम है। सिमिलरली पार्शल एल बाय पार्शल थीटा डॉट, जैसे हमने पहले भी किया था, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के बराबर है। और इसका मतलब ये है कि हमारा पी थीटा जो है वो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के बराबर है, और थीटा डॉट हमारा पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने आर डॉट और थीटा डॉट निकाल लिया। हैमिल्टोनियन अपना कंस्ट्रक्ट करेंगे, समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल which is equals to PR R dot plus P theta theta dot minus L which is equals to PR आपका क्या होगा जी, PR जो भी है हम R डॉट की वैल्यू पुट करें ताकि हैमिल्टोनियन को हम R डॉट और थीटा डॉट के बगैर के फंक्शन में ला सकें। और L की भी अगर हम वैल्यू डाल दें पहले तो अच्छा है, ताकि एक ही दफ़ा वो हम ज़रा चेंजेस लेके आए। PR R डॉट प्लस P थीटा थीटा डॉट माइनस एल की बजाय आपका आएगा एम ओवर टू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वी आर थीटा। अब जी आप लेंगे इसकी आर डॉट की वैल्यू वो पुट करेंगे तो आपके पास आ गया पी आर स्क्वायर ओवर एम प्लस पी थीटा स्क्वायर ओवर एम आर स्क्वायर माइनस एम ओवर टू आर डॉट स्क्वायर की वैल्यू पी आर स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू पी थीटा स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर आर फोर प्लस वी आर थीटा एज इट इज। सो आपका हैमिल्टोनियन जो रिड्यूस हुआ है, जब हम ये सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो पी आर स्क्वायर ओवर टू एम प्लस पी थीटा स्क्वायर ओवर टू एम आर स्क्वायर प्लस वी आर थीटा में ये रिड्यूस हो गया। Now your Hamiltonian has become PR square over 2m plus P theta square over 2mr square plus VR theta। पार्शल h बाय पार्शल PR ये किसके बराबर होगा? अब हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशन लेनी है। पार्शल h बाय पार्शल PR किसके बराबर है? Q डॉट R के बराबर या R डॉट के बराबर। पार्शल h बाय पार्शल R किसके बराबर है? ये हमें पता है कि ये हमारा माइनस पी आर डॉट के बराबर है। ठीक है। और इसी तरह पार्शल h बाय पार्शल पी थीटा किसके बराबर है? हमारे पास Q डॉट थीटा यानी कि थीटा डॉट के बराबर। और पार्शल h बाय पार्शल थीटा हमारा किसके बराबर है? ये हमारा माइनस पी थीटा डॉट के बराबर है। तो पार्शल h बाय पार्शल पी आर जो r डॉट के बराबर है, इसके अंदर जब हम वैल्यू डालेंगे तो r डॉट हमारा किसके इक्वल निकल आया? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पी आर ओवर एम के। और इसी तरह माइनस पी आर डॉट इज पार्शल h बाय पार्शल r और पी आर डॉट आपका निकल आया माइनस पार्शल v बाय पार्शल r। इसी तरह पार्शल h बाय पार्शल पी थीटा इक्वल टू क्यू थीटा डॉट के बराबर है। इट मीन्स कि आपके पास आ गया जी थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर, और जी आपके पास पी थीटा डॉट इक्वल टू पार्शल h बाय पार्शल थीटा विद नेगेटिव साइन है, तो पी थीटा डॉट इक्वल टू माइनस पार्शल h बाय पार्शल थीटा पार्शल v बाय पार्शल थीटा के बराबर। ठीक है जी। अब ये आपकी हो गई हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो रिक्वायर्ड थी। रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन इक्वेशंस आर, पहली क्या थी? आर डॉट इक्वल टू पी आर ओवर एम, थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर। उसके बाद जी
पी आर डॉट इक्वल टू माइनस पार्शल वी बाय पार्शल आर, पी थीटा डॉट इक्वल टू माइनस पार्शल वी बाय पार्शल थीटा। ये मेरी 4 हैमिल्टोनियन इक्वेशंस थी जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बनी थी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स या सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें ये पता है कि पार्टिकल के लिए फ्री कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, एक्स वाई जेड। उसके लिहाज से सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे फ्री, रो थीटा जेड या रो फाई जेड। पहले हमने यूज किया था, मैं फाई की बजाय थीटा यूज कर रही हूँ, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, एक्स किसके बराबर होगा, एक्स इज रो कॉस थीटा, वाई आपका है रो साइन थीटा और जेड आपका है जेड। अब यहां से सबसे पहले हमने क्या लेना, क्या कंस्ट्रक्ट करना, सबसे पहले हमने लैग्रांजियन कंस्ट्रक्ट करना है और इसके लिए हमें जनरलाइज्ड वेलोसिटीज की जरूरत है। एक्स डॉट रो डॉट कॉस थीटा माइनस रो साइन थीटा थीटा डॉट, योर वाई डॉट इज रो डॉट साइन थीटा प्लस रो कॉस थीटा थीटा डॉट and z dot is equal to z dot. So your kinetic energy is half x dot square plus y dot square plus z dot square, which would be in short, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और सारा कुछ करें तो हमारे पास आएगा हाफ रो डॉट स्क्वायर और ये साथ में m भी मल्टीप्लाई हो रहा, m by 2 रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। ये आ गया हमारा t। v आपका क्या था, आपका v जो है उसने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो हमें v रो थीटा z तीनों पे डिपेंडेंट लेना पड़ेगा। अब आपका लैग्रांजियन t माइनस v है विच इज इक्वल्स टू m ओवर 2 रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस v रो थीटा z। ये आ गया आपका लैग्रांजियन। अब जी लैग्रांजियन के बाद हमने क्या करना है, लैग्रांजियन के बाद हमने क्या करना है, हमने जनरलाइज मोमेंटा मेंशन करने हैं। वेलोसिटीज आ गई, जनरलाइज कोऑर्डिनेट से जनरलाइज वेलोसिटीज आ गई, वहां से लैग्रांजियन आ गए। लैग्रांजियन से जनरलाइज मोमेंटा आएंगे, कैसे आएंगे कि पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई इक्वल टू पी आई। तो यहाँ पे हमारे पास पी आईज क्या होंगे, एक तो पी रो होगा, पी रो इज पार्शियल एल बाय पार्शियल रो, उसके बाद जी पी थीटा होगा जो पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा है और पी जेड होगा जो पार्शियल एल बाय पार्शियल जेड है। सो योर पी रो इट वुड बी सॉरी पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट, वही पी आई के बराबर होगा ना, रो डॉट थीटा डॉट जेड डॉट, डॉट का मतलब है डॉट वेलोसिटीज के लिहाज से। अच्छा वेलोसिटीज के लिहाज से हम पी आईज ले रहे हैं। अच्छा पार्शियल एल बाय पार्शियल रो डॉट, एम रो डॉट है और इसका मतलब ये है कि रो डॉट आपका पी रो ओवर एम आएगा। दूसरी इक्वेशन से पी थीटा आपका आ गया एम रो स्क्वायर थीटा डॉट और इसका मतलब ये है कि आपका थीटा डॉट है पी थीटा ओवर एम रो स्क्वायर। और तीसरा आपके पास की पी जेड आना चाहिए जो कि एम जेड डॉट आ गया है, यानी कि जेड डॉट आपके पास पी जेड ओवर एम आ गया। ठीक है, ये तीन चीजें आपके पास आ गई। अब आपका हैमिल्टोनियन किसके बराबर है, समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल और ये बराबर है, पहले आप आई की बजाय रो लगा लोगे, पी रो इंटू रो डॉट प्लस पी थीटा इंटू थीटा डॉट प्लस पी जेड इंटू जेड डॉट माइनस लैग्रांजियन। ठीक है, अब हम अगले पेज पे इसको हैमिल्टोनियन को लिखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से इसकी वैल्यूज देख के तो वो लिखेंगे। हैमिल्टोनियन हमारा है जी पी रो इंटू रो डॉट प्लस पी थीटा इंटू थीटा डॉट प्लस पी जेड इंटू जेड डॉट माइनस एल रो थीटा जेड और जी
पी रो इंटू रो डॉट प्लस पी थीटा इंटू थीटा डॉट प्लस पी जेड इंटू जेड डॉट। अब लेग्रांजियन की वैल्यू हम देखेंगे, m/2 रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस वी रो थीटा जेड, ये आ गई। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, पी रो डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट माइनस m/2 रो डॉट स्क्वायर माइनस m/2 रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस m/2 जेड डॉट स्क्वायर प्लस वी रो थीटा जेड। ये आपका हैमिल्टोनियन आ गया। अब हमने करना क्या है, हमें रो डॉट की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ पी रो ओवर 2m है, और हमें थीटा डॉट की वैल्यू पता है कि इट इज पी थीटा ओवर 2m, और साथ क्या था जी, यहां से हमने निकाली तो हुई थी पी थीटा ओवर m रो स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, m रो स्क्वायर, और जी z डॉट आपके पास आ गया पी जेड ओवर m, ये आ गया। जब ये वैल्यूज हम हैमिल्टोनियन में पुट करेंगे तो हमारा हैमिल्टोनियन आ जाएगा पी रो स्क्वायर ओवर m प्लस पी थीटा स्क्वायर ओवर m रो स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर ओवर m माइनस m/2 पी रो स्क्वायर ओवर m स्क्वायर माइनस m/2 रो स्क्वायर, और थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, पी थीटा स्क्वायर ओवर m स्क्वायर रो 4 माइनस m/2 z डॉट की बजाय पी जेड स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस वी रो थीटा z। अच्छा जी, अब आपका हैमिल्टोनियन जब आप सिंप्लीफाई करोगे इट वुड रिड्यूस टू पी रो स्क्वायर ओवर 2m प्लस पी थीटा स्क्वायर ओवर 2m रो स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी रो थीटा जेड। ये आ गया आपका हैमिल्टोनियन। अब आप हैमिल्टन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। हैमिल्टन इक्वेशन क्या थी, पार्शियल h बाय पार्शियल क्यू आई इज माइनस पी आई डॉट, और पार्शियल h बाय पार्शियल पी आई इक्वल टू क्यू आई डॉट। ये है आपकी हैमिल्टन इक्वेशन। तो अगर हम रो के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी, या पी आई डॉट आप कह सकते हो कि ये माइनस पार्शियल h बाय पार्शियल क्यू आई। अब रो के हिसाब से ये फाइंड आउट करते हैं, पी रो डॉट आपके पास क्या बना, माइनस पार्शियल h बाय पार्शियल क्यू आई था, क्यू आई डॉट था। ये जरा एक दफा ना पीछे से देख लेते हैं, ये भूल ना गई हो। कहाँ है भाई हैमिल्टन इक्वेशन, मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी, पार्शियल h बाय पार्शियल क्यू आई है। मैंने कहा इससे गलत ना हो जाए तो बेहतर है देख लूं। अच्छा, पी रो डॉट किसके बराबर है, पार्शियल h बाय पार्शियल रो के बराबर, जो कि पार्शियल v बाय पार्शियल रो है। इसी तरह पी थीटा डॉट माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल थीटा है, और इसी तरह पी जेड डॉट माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल z है। ठीक है जी। अब आप आ जाएं जी पार्शियल h बाय पार्शियल पी रो क्यू आई डॉट के बराबर, यानी कि रो डॉट बराबर है पार्शियल h बाय पार्शियल पी रो के, यानी कि यहां से आ जाएगा पी रो ओवर m। इसी तरह थीटा डॉट पार्शियल h बाय पार्शियल पी थीटा के बराबर है, जो कि सिर्फ इस टर्म से आएगा, यहाँ पे तो पीज इंक्लूड ही नहीं है ना वी के अंदर। तो जी ये मेरे पास आ जाएगा पी थीटा ओवर m रो स्क्वायर, और इसी तरह जब मैं z डॉट लूंगी तो पी जेड ओवर m आ जाए। तो ये मेरे पास जो 6 इक्वेशंस निकल आई हैं, दीज आर माय हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, and this one is my Hamiltonian function, and this Hamiltonian function is giving me the energy of the whole system, and these equations are Hamiltonian's equation of motion, which give me some information about the motion of the system. ठीक है जी। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस निकली हैं, जो प्रीवियस पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन थी, उनमें क्या फर्क है।
पोलर कोऑर्डिनेट में जो हमारे पास इक्वेशंस आई थी वो थी r डॉट इक्वल टू पी आर ओवर एम, थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर, p डॉट r इक्वल टू माइनस v ओवर r, p डॉट थीटा इज माइनस v ओवर पार्शल माइनस पार्शल v ओवर पार्शल थीटा, पी आर डॉट इज माइनस पार्शल v बाय पार्शल r। इसको अगर आप कंपेयर करो इन इक्वेशन से और r के बजाय आप रो पुट करो तो देखो कि ये जो पहली 4 इक्वेशन है ये तो वही है। फर्क कहाँ पे पड़ा? z कोऑर्डिनेट कि जी एक z कोऑर्डिनेट भी आ गया और z डॉट भी आ गया और pz डॉट भी आ गया। हैमिल्टोनियन में फर्क कहाँ पे पड़ा? एक तो आपका पोटेंशियल z डिपेंडेंट हो गया, दूसरा ये एक और टर्म आ गई जो कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के हैमिल्टन से डिफरेंट थी, pz स्क्वायर ओवर 2m। अब जब हम स्फेरिकल की बात करेंगे तो हम इससे भी आगे जाएंगे। अभी तो ये है कि मैं इसको यहाँ पे ही छोड़ रही हूँ। छोड़ने का मकसद ये है कि आप लोग खुद करो और आप लोगों को ज़रा अंदाज़ा हो और खुद ट्राई करो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये कैसा होगा। थोड़ा सा मैं आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में वैसे टिप दे देती हूँ कि जी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद है, x क्या था इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स? अगर आपके रो फाई थीटा हो तो x आपके पास होगा जी z, आप z सबसे पहले लिखने ना, z रो कॉस थीटा था तो x रो साइन थीटा कॉस फाई था, y जो है आपका रो साइन थीटा साइन फाई है और z आपका रो कॉस थीटा है। अब यहाँ से आप x डॉट y डॉट z डॉट निकालोगे, x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर निकालोगे, वो आपके पास जो भी निकल आएगा आप वहाँ से t निकाल लोगे, m से उसको मल्टीप्लाई करोगे, उस समेशन को ओवर 2 करोगे, t निकल आएगा, t माइनस v करोगे, लेग्रांजियन आएगा। लेग्रांजियन आएगा तो लेग्रांजियन से आपने फिर हैमिल्टोनियन की तरफ चलना है। लेग्रांजियन से पहले जनरलाइज मोमेंटा कंस्ट्रक्ट करने हैं, फिर हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है जी। अब ये है कि ये जो सारा का सारा था हमारा लेक्चर और दिस एंड दैट, ये जो सारा हमने किया था अब तक किया है वो क्या है, एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं शुरू से लेके अब तक कि हमने किया क्या है। ठीक है, हमने सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट करना सीखा कि जी हैमिल्टोनियन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके लिए हमने स्टेप्स देखे कि जी पहले तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लें कि आपका जो हैमिल्टोनियन है वो किन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। उसके बाद जी लेग्रांजियन वहाँ से फाइंड आउट करें, लेग्रांजियन आपका t माइनस वी है। फिर आप उसकी बेसिस पे कॉन्जुगेट मोमेंटा ले लें। कॉन्जुगेट मोमेंटा कहाँ से लिया जा सकता है? वो पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट वहाँ से ले लेंगे। उसके बाद आप वहाँ से हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट कर लें, क्योंकि आपके पास मोमेंटा भी होंगे, आपके पास जनरलाइज वेलोसिटीज भी होंगे और आपके पास लेग्रांजियन भी होंगे। वहाँ से जब आप ये सारी चीज़ें ले लेंगे तो ये जो क्यू आई डॉट की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज मोमेंटा फाइंड आउट करें। जनरलाइज मोमेंटा और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में इसको फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के बाद आप क्यू आई डॉट की वैल्यूज पुट कर दें। पुट करेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी और आपका हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है, जो कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को जाहिर करता है, इट वुड बी डिपेंडेंट ऑन ओनली क्यू आई पी आई एंड टी। उसके बाद जी कंस्ट्रक्ट द हैमिल्टोनियन फॉर प्लेनर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल एंड ऑल्सो फाइंड हैमिल्टन्स इक्वेशन। दिस वाज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस पे है? एक पार्टिकल है जो किसी सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल के अंडर एक प्लेनर मोशन दे रहा है और उसके लिए हमने हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए हमने किया क्या कि हमें ये पता है कि प्लेनर मोशन है पार्टिकल की, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है, तो हम एक्स वाई को तो प्रेफर नहीं करेंगे। हम प्रेफर किसको करेंगे? आर थीटा कोऑर्डिनेट्स को। आर थीटा कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल क्योंकि एक प्लेनर मोशन दे रहा है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होंगे, वहाँ से आप आर थीटा में चले जाओ। आर थीटा में जाओगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी इन टर्म्स ऑफ आर थीटा मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी इन टर्म्स ऑफ आर आपकी आ गई जो कि गिवन थी। एल आपने वहाँ से टी माइनस वी करके लिया, लेग्रांजियन पे आ गए। लेग्रांजियन पे आने के बाद आपने वहाँ से पी आर और पी थीटा निकाला। वहाँ से आपने आर डॉट और थीटा डॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी आर एंड पी थीटा निकाल ली और उसके बाद आपने एच लिखा, एच बनाया, कंस्ट्रक्ट किया एच को और एच के अंदर इन द लास्ट आपने आर डॉट और थीटा डॉट की वैल्यूज डाल दी। तो आपका पूरा का पूरा एच जो है, यहाँ देखिए
वो डाल के तो आपको पूरा का पूरा h इन टर्म्स ऑफ पी आर और पी थीटा आ गया। उसके बाद आप हैमिल्टोनियन इक्वेशन पे आ जाते हो कि जी हैमिल्टोनियन इक्वेशन आपकी क्या बनी। अब तो हैमिल्टोनियन बन गया ना, ये हैमिल्टोनियन वो फंक्शन है जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को जाहिर करता है। उसके बाद हम लोग आए थे इधर हैमिल्टोनियन इक्वेशन की तरफ। हैमिल्टन इक्वेशन जो थी वो हमने निकाली, उसके अंदर हमने आर और थीटा की वैल्यूज पुट की और वहां से हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, उसके बाद जी आगे हम आए हैं तो एग्जांपल हमारी थी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के मुतालिक। उसमें आप हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट करें और हैमिल्टन इक्वेशन फाइंड आउट करें पार्टिकल के लिए। तो सबसे पहले हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट लिया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या था, पहले में डिफरेंस था कि v इज डिपेंडेंट ऑन r एंड नाउ योर v इज डिपेंडेंट ऑन r एज वेल एज थीटा। उसके बाद इसके लिहाज से हमने हैमिल्टन कंस्ट्रक्ट किया, हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकाली। फिर हमने जी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लिए, उसके लिहाज से हमने हैमिल्टन कंस्ट्रक्ट किया, उसके लिहाज से हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकाली। और मैंने आपको होमवर्क ये दिया है कि आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लो और उसके लिहाज से निकालो, ठीक है। और उसको हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी डिस्कस करेंगे और कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।